which is given some initial velocity and then allowed to move under the effect of gravity alone, is called projectile. Is called projectile. And the path followed by projectile. And the path followed by projectile is called its trajectory. Path followed by projectile is called its trajectory. सर इस कॉल के बाद क्या था? Is called its trajectory. First, to now put a subheading: oblique projectile. Oblique projectile. In oblique projectile, the body is thrown at some angle. In oblique projectile, the body is thrown at some angle with horizontal. Body is thrown at some angle with horizontal. सर सम एंगल के बाद क्या था? Body is thrown at some angle with horizontal. And then moving. And then moving under the effect of gravity. And then moving under the effect of gravity. As no other force, as no other force is acting, except gravitational force in vertical direction. As no other force is acting except gravitational force in vertical direction, we can conclude that force acting on the body we can conclude that force acting on the body in horizontal direction is always zero. Force acting on the body in horizontal direction is always zero. Projectile motion is a two-dimensional. Projectile motion is a two-dimensional motion. And it will be resolved as two one-dimensional motions. सर It रिपीट will करना. be resolved. Projectile motion is a two-dimensional motion and it will be resolved as two one-dimensional motions. Now you put first heading. Resolved as Two one-dimensional motions.
First is equation of trajectory. Means we have to find the relation between distance traveled in horizontal and vertical direction. Equation of trajectory. You can write. It is mathematical relation between. It is mathematical relation between distance traveled by the body. Mathematical relation between distance traveled by the body in horizontal direction and vertical direction. Just consider a body traveled by the body in horizontal and vertical direction. Consider a body which is given initial velocity u. And it makes an angle theta with horizontal. अब हमने इसको 2 वन डायमेंशनल प्रॉब्लम में स्प्लिट करना है. पहले हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करेंगे. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ux x डायरेक्शन में. U cos theta. U cos theta. एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल Zero. डायरेक्शन में 0. O से P तक. पिछला डायग्राम देखो. बॉडी अगर O से P तक गई तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल कितना गया और वर्टिकल कितना गया. sir horizontal x Horizontal vertical y X, vertical Y. वर्टिकल y. सो हॉरिजॉन्टल x और वर्टिकल y. सो अभी हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज x. मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम O टू P. और मान लो टाइम लगा t. तो यूजिंग x कितना आ जाएगा. मतलब टाइम कितना लगा x डिस्टेंस कवर करने में. ये देखो ये समझ में आ रहा है. इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी u cos थीटा. ये t ये 0 हो गया बिकॉज a 0 है. तो मैं बस आ गया x इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू t और t इज x बाय u cos थीटा. अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन लेता
वर्टिकल डायरेक्शन लूं तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? U sin U theta sin theta u sin थीटा. एक्सेलरेशन -10 माइनस जी ले लेंगे ना, फॉर्मूला बना रहे हैं अभी. एक्सेलरेशन इज माइनस जी. ओ से पी तक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y वाई y और टाइम सेम टी. तो अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन कंसिडर करें initial velocity is u sin theta minus g, displacement is plus y, again from O to P. यहां पे अगर हम यूज करें यू टी प्लस आर वी डी स्क्वायर, एस की जगह वाई, यही बनी इक्वेशन. यहां से जो टी की वैल्यू निकाली है इधर पुट कर देंगे तो एक्स और वाई में रिलेशन आ जाएगा. सब्स्टिट्यूट 2 in 1. y is equals to टाइम की वैल्यू x by u cos थीटा. So you get y is equals to x tan theta इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री. सर ट्रेजेक्ट्री का अपना मीनिंग क्या है? ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ. इसी फॉर्म की इक्वेशन है y is equal to ax plus bx square. a की जगह क्या है हमारे पास? इन दोनों को कंपेयर करें तो a की जगह यू हैव tan Tan theta tan थीटा और b की जगह माइनस जी g minus g माइनस जी ओवर 2 u स्क्वायर cos square थीटा. cos cos square theta. ये जो इक्वेशन होती है दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला मैथ्स में. तो ये पैराबोला की इक्वेशन बन रही है, मतलब पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक. नॉर्मली फिजिक्स की बुक्स में इस इक्वेशन का यूज कम करते हैं वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, बट आई कॉल इट वेरी अंडररेटेड इक्वेशन. बिकॉज मैं आपको शो करूंगा जब एमसीक्यूज क्या करेंगे कि दिस इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू सॉल्व द न्यूमेरिकल मच फास्टर एज कंपेयर टू जो बाकी मेथड यूज होते हैं. ये बहुत स्ट्रॉन्ग इक्वेशन है. हाँ जी सर y इक्वल्स टू ax प्लस bx स्क्वायर क्यों दिया? ये पैराबोला की इक्वेशन होती है बेटा मैथ्स में. मैथ्स पढ़ोगे तो पता चलेगा, आपका 11th में होगा पैराबोला का चैप्टर. ओके सर. ये फिजिक्स नहीं है, इट्स मैथ्स इक्वेशन. सर इस इक्वेशन को कहते क्या है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री. ट्रेजेक्ट्री मतलब इक्वेशन ऑफ पाथ फॉलोड. तो यहीं से पता चल रहा है कि पाथ फॉलोड पैराबोलिक होगा. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी सर वो पैराबोला की इक्वेशन सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c नहीं होती?
क्या सर वो ax square plus bx सी plus तो वर्टेक्स चेंज करने के लिए होता है। इक्वेशन जनरल इक्वेशन तो यही होती है, वर्टेक्स कहीं और लेना है तो कुछ और बना लो, बट बेसिक कंसेप्ट तो यही रहना ना, ये एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। ओके सर। मैथ्स में जो आप पढ़ोगे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप ये पढ़ोगे, इसको पैराबोला की इक्वेशन पढ़ोगे मैथ्स में, बता देंगे कि ये भी पैराबोला ही होता है, बट अदरवाइज यूज आप इसको ज्यादा करोगे। वाई स्क्वायर इज इक्वल 4x। कर लिया नोट ये? तो इस इक्वेशन का तो रट्टा मारना पड़ेगा बिकॉज इट विल बी यूज्ड इन नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स। सेकंड है, अगर मेरे को h निकालना है या ये टाइम निकालना है TA, इसको TA लिखा बिकॉज दिस इज टाइम ऑफ असेंट, ऊपर जाने का टाइम सिर्फ, TA इज टाइम ऑफ असेंट। तो मेरे को टाइम ऑफ असेंट निकालना है तो मैं कौन सी डायरेक्शन कंसीडर करूं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वर्टिकल अगर मेरे को ऊपर जाने का टाइम निकालना, वर्टिकल वर्टिकल। इनिशियल वेलोसिटी एट O, वर्टिकल डायरेक्शन में, u sin theta u यू sin theta। साइन थीटा फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी एट A, 0 0 0। एक्सेलरेशन minus g minus minus g 9.8 कौन सी इक्वेशन से टाइम निकल आएगा? v is equal to u V is plus equal to at, u v plus भी a. पता है, u भी पता है, a भी पता है, so you can find the time of ascent. Similarly मेरे को अगर h max निकालना है तो मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कंसीडर करूं या वर्टिकल? वर्टिकल vertical Initial velocity u sin theta, final velocity 0, displacement is h max, a is minus g, तो v square minus u square is equal to 2as से h max की वैल्यू आ जाएगी। बट अगर मेरे को रेंज निकालनी है तो कौन सी डायरेक्शन? हॉरिजॉन्टल। horizontal horizontal तो रेंज के लिए हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए या टाइम ऑफ असेंट निकालने के लिए वर्टिकल। अच्छा, जितना टाइम ऑफ असेंट होगा टाइम ऑफ डिसेंट उतना ही होगा? yes yes अगर मैं आपसे बोलूं टाइम ऑफ टोटल टाइम निकालना है यहां तक पहुंचने का, तो कैसे निकालें? इनिशियल वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल? vertical वर्टिकल। इनिशियल वेलोसिटी, u sin theta u sin u theta sin theta फाइनल वेलोसिटी u sin u sin sin theta माइनस यू साइन थीटा, बिकॉज पहले अपवर्ड है अब डाउनवर्ड है। So initial velocity u sin theta, final velocity minus u sin theta. Acceleration minus g minus g minus g, और दोबारा से t is equal to v minus u by a. So first you write time of ascent. Time of ascent. सर इसकी डेरिवेशन आती है ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन? बिल्कुल आती है। इनफैक्ट फाइनल एग्जाम में, जब आपके बोर्ड स्कूल के फाइनल एग्जाम होंगे, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। हम जितनी डेरिवेशंस आज कर रहे हैं सारी दे देंगे एक ही क्वेश्चन में। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज एंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, 5 नंबर में आएगा। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन होता है। टाइम ऑफ असेंट, it is time taken by the body, it is time taken by the body to move from ground to the maximum height, to move from ground to the maximum height. till the time एक बार Time taken by the body to move from ground to the maximum height. As shown in the figure. As the body moves from point O to A, its vertical velocity goes on decreasing as the body moves
As the body moves from O to A, its vertical velocity goes on decreasing, and at highest point, the vertical velocity is 0. And at highest point, the vertical velocity is 0. So consider vertical direction. Time of ascent is u sine theta by g. देखो इसमें कुछ नहीं आ रहा समझ तो टाइम ऑफ फ्लाइट ये होता है टोटल टाइम ग्राउंड से वापस ग्राउंड तक आने का मतलब टाइम फॉर विच बॉडी रिमेन्स इन एयर time for which body remains in air or time taken to move from initial to final point. Point where it hits the ground. So O से O से B ले दें. So for motion from O to B in vertical direction. Vy is minus u sin and acceleration is minus e. minus g. minus g. Using T is equals to total time of flight is
implies time of flight is twice the time of ascent. या आप ये भी कह सकते हो कि नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगेगा जितना ऊपर जाने में लगा, बिकॉज तभी टोटल टाइम डबल आएगा. जस्ट सी इसमें कुछ पूछने वाला है तो. आज वाली डेरिवेशंस ध्यान से करना, बिकॉज कल इसी के ही न्यूमेरिकल्स करेंगे सिर्फ ओब्लिक प्रोजेक्टाइल के. कर लिया नोट ये? Yes. Yes. Yes, sir. Next is maximum height. H max. So it is the maximum displacement in vertical direction. Now you can say vertical displacement at point A, because उसके बाद तो body नीचे आने लगी. Vertical direction ही consider करनी है. Initial velocities. U sin. U sin theta. Acceleration is minus g. Final velocity at A. And displacement is vertical displacement is H max. Using zero minus u square sine square theta is equals to 2 into minus g into H max. तो H max कितना आ गया? U square sin square theta upon G. क्लियर है ये? Yes, बिकॉज sir. वैल्यूज तो हम सेम ही यूज कर रहे हैं. इनिशियल वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, हर पार्ट में डेरिवेशन में वैल्यूज सेम ही है. Horizontal range R. We say it is horizontal displacement in time equals to time of flight. पूरा horizontal distance O से B तक. It is maximum horizontal displacement.
time equals to time of flight. कौन सी डायरेक्शन कंसीडर करें? हॉरिजॉन्टल Horizontal. हॉरिजॉन्टल horizontal, Horizontal. Initial velocity कितनी? U cos theta. u U cos theta, cos theta. So ux. Acceleration horizontal direction में 0 0. टाइम कितना लगा उसे बी तक जाने में? 2u sin theta by g 2TA. 2ta या 2u sin theta by g. Horizontal displacement is r. Using s is equals to ut plus half ad square. सेकेंड टर्म तो जीरो हो जाएगी बिकॉज a जीरो है, तो r is equals to u cos theta into time. ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी पढ़ ली तो बताओ नॉन मेडिकल वाले, 2u sin theta cos theta is? सर नहीं पढ़ाई है अभी। नहीं पढ़ाई तो रट्टा मारो फिर। मैथ्स का फॉर्मूला 2 cos theta sin theta is sin 2 theta. इससे थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दो। अच्छा, रेंज मैक्सिमम कब होगी? थीटा कितना होता कि रेंज मैक्सिमम हो जाए? 45 डिग्री। बिकॉज sin 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? व्हेन sin 2 थीटा इज 9 sin 9 sin 2 theta is 1, 2 theta is 90 और theta is 45. सर हाँ जी, जो भी आपने मैक्सिमम वाला बताया वो एक बार दोबारा बता दो। रेंज की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी फॉर अ गिवन वेलोसिटी? आर का फॉर्मूला है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, तो sin 2 थीटा मैक्सिमम कब होता है? साइन की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? 2 थीटा की क्या वैल्यू होगी ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाए आर की? 2 थीटा शुड बी 90, तो थीटा शुड बी 45. तो आपने किसी बॉडी को अगर सबसे दूर फेंकना है तो उसको 45 के एंगल पे फेंकोगे तो सबसे दूर जाके गिरेगी. These concepts are used by say persons having long jump. तो लॉन्ग जंप में थीटा 45 रखेंगे, मतलब दैट्स रफ कैलकुलेशन बिकॉज प्रैक्टिकली जब आप यूज करते हो तो यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट द विंड वेलोसिटी, द एयर रेजिस्टेंस, ऑल दोस फैक्टर्स, बट अप्रॉक्सिमेटली थीटा शुड बी 45 फॉर मैन टू जंप द मैक्सिमम डिस्टेंस. बिकॉज यू एक लिमिट से ज्यादा आप चेंज नहीं कर सकते. द मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच यू कैन रन, जी पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है. तो sin 2 थीटा जब मैक्सिमम होगा तो आर मैक्सिमम आएगा और लॉन्ग जंप लगा सकते हो आप. बिकॉज इसीलिए आपने देखा होगा कि लॉन्ग जंप में जो रिकॉर्ड बनते हैं जनरली आर ऑफ दोज पीपल हु कैन रन फास्ट, जैसे कार्ल लुइस, बिकॉज 100 मीटर का स्प्रिंट चैंपियन भी था और लॉन्ग जंप का चैंपियन भी था. रीजन भी कि वो तेज दौड़ सकता था, यूज ज्यादा है उसके पास, थीटा को 45 करके ही कैन जंप लार्जर डिस्टेंस.
या उससे पहले आई थिंक बॉब बीमन का रिकॉर्ड इट वाज फॉर सम 30-35 years because again he can run fast. अच्छा, अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मैंने क्या ड्राइव की थी, कोई बता सकता है? मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को लिखा था x tan theta minus dx square by 2 मेरे को पता है, पढ़ के बता देगा, अभी याद थोड़ी कर लिया आपने। हमारे पास ये इक्वेशन थी, मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूं, x tan थीटा को कॉमन ले लेता हूं, ब्रैकेट में क्या आएगा, अगर मैंने x tan थीटा को कॉमन लिया, gx square by 2u square cos square theta into x tan theta. x तो है ऊपर न्यूमरेटर में, 2u स्क्वायर Cos cos थीटा sin थीटा, बिकॉज cos स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा यही बनेगा ना, cos थीटा sin थीटा। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, लिख सकते हैं ऐसे, yes sir. Yes, sir. एंड जो डिनोमिनेटर में टर्म है दिस इज रेंज, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इस फॉर्म में भी याद रखनी पड़ेगी, y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x बाय r, बिकॉज r अभी हमने निकाला है 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाय g, ये वाली फॉर्म 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाय g इज r। सर एक बार ही तो आपको दोनों फॉर्म में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी याद रखनी पड़ेगी। सर रेंज हम सिर्फ टोटल डिस्प्लेसमेंट को बोल सकते हैं या कोई भी पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट? टोटल मैक्सिमम लिखा था, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज रेंज। अच्छा, अब मैं आपसे लॉजिकल क्वेश्चन पूछता हूँ। So you have a boy which can throw a ball with 10 meters per second at some angle theta. Another boy in a boat, he also throws the ball with 10 meters per second at an angle theta when boat is moving with velocity u1. दोनों की हॉरिजॉन्टल रेंज सेम आएगी या डिफरेंट, मैक्सिमम हाइट सेम आएगी या डिफरेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम आएगा या डिफरेंट? सर वो क्वेश्चन एक बार ही रिपीट करना, वो एक ने ग्राउंड से फेंका, एक ने बोट से फेंका, दोनों की अगर मैं पूछूं रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? दोनों ने फेंका 10 मीटर पर सेकेंड से ही है और एट एन एंगल थीटा ही थ्रो किया, different होगा। तो डिफरेंट हो, तीनों तो डिफरेंट है। टाइम ऑफ फ्लाइट सर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा, मतलब मूविंग बोट में से फेंकोगे तो भी स्पीड सेम है तो, बिकॉज अगर मैं इस केस में आपसे पूछूं, बोट वाले केस में, पहले वाला केस तो हमने सारी डेरिवेशंस कर ली, बोट वाले केस में बॉडी की इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? 10 cos थीटा, स्पीड ऑफ बोट 10 cos थीटा या 10 cos थीटा प्लस u1 या सिर्फ u1?
या 10 cos थीटा माइनस u1? 10 cos theta 10 minus cos theta u plus u. बिकॉज जो स्टोन आपने फेंका उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 10 cos थीटा, बोट ऑलरेडी u1 से मूव कर रही थी, तो मैं वेलोसिटी ऑफ स्टोन कितनी लूं इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? So boat भी उसी डायरेक्शन में जा रही बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है जिधर आपने थ्रो किया। 10 cos theta minus है। 10 cos 10 cos theta theta plus minus u1. आप रिलेटिव क्यों ले रहे हो? आपको रिलेटिव लेनी है या नेट वेलोसिटी लेनी है? आपको पता है इंडिया सैटेलाइट्स कहाँ से लॉन्च करता है अपने, या आईसीबीएम्स कहाँ से लॉन्च करता है? Net velocity. किसी को आइडिया है? हरिकोटा से श्री हरिकोटा से ही क्यों करते हैं भाई? श्री हरिकोटा मतलब ऐसे अच्छी जगह से क्यों नहीं करते? दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, वाई श्री हरिकोटा? कुछ रीजन होगा ना? एरिया ना, बिकॉज कहीं जगह अच्छा, जगह रिमोट एरिया है तो मध्य प्रदेश चले जाएं, आदिवासी एरिया में, अंडमान निकोबार चले जाएं, नहीं सर, उससे मतलब रिमोट कि एरिया है इंडिया में। श्री हरिकोटा इज नॉट द रिमोटेस्ट एरिया। सर शायद ऐसा कुछ होता है कि वो इक्वेटर के पास होती है। इक्वेटर के पास से लॉन्च करना है तो कन्याकुमारी से करना है। इक्वेटर तो श्रीलंका से पास करता है, तो कन्याकुमारी से लॉन्च करेंगे तो इक्वेटर के ज्यादा पास हो जाएंगे, बिकॉज इक्वेटर passes थ्रू श्रीलंका। वाई श्री हरिकोटा? है कहाँ पे श्री हरिकोटा? किसी को ये आइडिया है? ये जो आता है कि सर आंध्र Near Odisha. प्रदेश। उड़ीसा। ओके, अब वहीं से क्यों? ज्योग्राफी देखें आपकी, अर्थ कैसे रोटेट करती है? वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। अर्थ की रोटेशन। West to east. बहुत स्मार्ट। अर्थ की रोटेशन नहीं पता, अर्थ कैसे रोटेट करती है? ईस्ट टू वेस्ट। So डायरेक्शन ऑफ वेस्ट टू रोटेशन, ईस्ट। west to east. वेस्ट टू ईस्ट। अब अगर मैं अर्थ से कोई बॉडी थ्रो करता हूं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी जो अर्थ की है? अगर मैंने बॉडी को कोई वेलोसिटी नहीं दी तो अगर अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है तो वो बॉडी भी वेस्ट टू ईस्ट अर्थ के साथ ही मूव कर रही थी इनिशियली। अब अर्थ मूव कर रही है, मैंने उसी डायरेक्शन में और वेलोसिटी दे दी, तो टोटल वेलोसिटी बॉडी की बढ़ गई या कम हो गई? सर बढ़ गई, सब बढ़ तो गई। यहाँ पे u1 plus 10 cos थीटा नहीं होना चाहिए था? जिधर बोट जा रही है उधर ही आपने और वेलोसिटी दे दी। रिलेटिव थोड़ी चाहिए, हमें नेट वेलोसिटी चाहिए। श्री हरिकोटा से लॉन्च करने का रीजन यही है कि अर्थ की वेलोसिटी सैटेलाइट की वेलोसिटी में ऐड हो जाएगी, बिकॉज अर्थ ऑलरेडी घूम रही है। अगर आप उसके ऑपोजिट चलाओगे तो वो माइनस हो जाती, तो आपको उतनी ज्यादा वेलोसिटी से सैटेलाइट लॉन्च करना पड़ता अगर आप अर्थ की वेलोसिटी के अगेंस्ट जाके मिसाइल को लॉन्च करोगे तो। अब फिर भी मतलब श्री हरिकोटा ही क्यों? बिकॉज वो तो ईस्ट कोस्ट तो हमारा बहुत बड़ा है, कहीं से भी कर सकते थे, चेन्नई से। बिकॉज ईस्ट कोस्ट इज अ लॉन्ग कोस्ट, मतलब बंगाल से शुरू होके इट गोज अप टू तमिलनाडु। कुछ रीजन होते होंगे ना, साइंटिस्ट एक जगह सेलेक्ट करते हैं, वहीं पे ही क्यों करना है? इट्स मोर ऑफ ज्योग्राफी रादर देन फिजिक्स। अब फिजिक्स वाला रीजन बता दिया, वेस्ट टू ईस्ट लॉन्च करना है, अर्थ की वेलोसिटी की हेल्प लेनी है, सैटेलाइट की वेलोसिटी में अर्थ की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, हमारे लिए लॉन्चिंग थोड़ी सी इजी हो जाएगी। सिटीज में से लॉन्च नहीं हो सकता, दिल्ली में से लॉन्च नहीं हो सकता, मुंबई में से लॉन्च नहीं हो सकता। उसका रीजन एक और भी होता है। क्या रीजन होता है? Need space. सर बिकॉज कैपिटल। मेनी ऑफ द टाइम सैटेलाइट्स फेल, गिर जाते हैं वो, तो आगे सिटीज हैं उनके ऊपर गिर जाएगा सैटेलाइट। ऐसे थोड़ी कहीं से भी लॉन्च कर देंगे। दिल्ली से लॉन्च किया सैटेलाइट या मिसाइल, फेल हो गई तो उत्तर प्रदेश में जाए गिर गई, वहां पे लोग मार दिए हमने। तो यू हैव टू सी सी कि आगे सी चाहिए। और इंडिया का अगर मैप देखोगे ना, कि अगर इंडिया के लोअर पोर्शन यहाँ से लॉन्च करते हैं, इधर से लॉन्च करते हैं, बिकॉज आगे बहुत सारा एरिया जो खाली है, इधर भी कंट्रीज आती है, इधर भी कंट्रीज आती हैं बर्मा जैसी,
तो बीच में से एक इनको खाली स्पेस मिलती है जहां से सैटेलाइट लॉन्च हो सकते हैं। कि इंडिया ने लास्ट जब अपनी अग्नि मिसाइल टेस्ट फायर की थी तो यू हैव हर्ड द न्यूज, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, बिकॉज यहाँ पे वो कंट्रीज आती हैं सारी, इंडोनेशिया, सिंगापुर, सारी कंट्रीज इधर लाई करती हैं और एक तरफ बर्मा है, तो बीच में से लॉन्च करता है इंडिया। नॉर्मली जब आपको मिसाइल लॉन्च करनी होती है आपको सारे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को बताना पड़ता है कि हम मिसाइल लॉन्च करेंगे सो दैट इट डज नॉट हिट एनी मूविंग एयरक्राफ्ट। और इंडिया की मिसाइल 2 एयरक्राफ्ट के बीच में से निकल गई थी एट अ डिस्टेंस ऑफ सम 40 किलोमीटर फ्रॉम वन एयरक्राफ्ट। अगर मतलब एक्सीडेंट हो जाता तो उस एरोप्लेन के सारे लोग मर जाते मिसाइल से हिट होने से। सो नॉर्मली इन्फॉर्म करना होता है, इंडिया ने बिना इन्फॉर्म किए मिसाइल लॉन्च कर दी थी, बिकॉज सारा ट्रैफिक रोका जाता है कि एयर ट्रैफिक इधर कोई नहीं आएगा, इधर से कोई एरोप्लेन पास नहीं करेगा जिस टाइम मिसाइल लॉन्च होनी है। सो इसलिए यहाँ से लॉन्च करते हैं बिकॉज इसकी वेलोसिटी और अर्थ की वेलोसिटी ऐड होगी। सो यहाँ पे इट विल बी 10 cos थीटा प्लस u1। अब मेरे को बताओ वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर 10 cos थीटा थी, इधर 10 cos थीटा प्लस u1 हो गई। टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज सेम रहेंगे या बढ़ जाएंगे अगर मैं ज्यादा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से थ्रो करता हूं तो? सर बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएंगे। रेंज विल इंक्रीज। तीनों बढ़ जाएंगे या सिर्फ टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ेगा, या टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज बढ़ेंगे, या मैक्सिमम हाइट और रेंज बढ़ेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा क्या? उसके लिए आप थोड़ा सा फॉर्मूलाज पे वापस जाओ। मैं आपको फॉर्मूला एक नए वे में लिख के दिखाता हूँ which helps you solve the numericals in a much faster way as a conceptual। टाइम ऑफ फ्लाइट का ये फॉर्मूला था, मैक्सिमम हाइट वाज range was यही 3 फॉर्मूलाज थे हमारे पास। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2u/g, because u sin theta क्या था? Initial vertical velocity। Similarly this can be written as uy²/2g। इसको कैसे लिखूं? इसको मैं ऐसे स्प्लिट कर देता हूं, तो ये फॉर्मूला क्या बना? ux/u/g। इससे प्रूफ क्या हुआ? टाइम ऑफ फ्लाइट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि सिर्फ वर्टिकल पे कर रहा है? वर्टिकल। नो सर। वर्टिकल पे तो ये तो नहीं बदलेगा, Vertical। बस थ्रो करने से बोट तो हॉरिजॉन्टल चल रही है ना, बोट तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रही है, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी तो यही है 10 sin थीटा। ये तो नहीं बदली, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बदल गई थी। तो बिकॉज वर्टिकल वेलोसिटी नहीं बदल रही, ना तो टाइम ऑफ फ्लाइट बदलेगा ना मैक्सिमम हाइट बदलेगी, ये बढ़ जाएगा बिकॉज दिस इज 2ux/uy। ux बढ़ गया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बढ़ गई। वही अगर बोट उल्टा जा रही होती तो कम हो जाए। रेंज कम हो रेंज जाती। डिक्रीज। और अगर 10 cos थीटा और u1 इक्वल है और u1 ऑपोजिट डायरेक्शन में है, अगर 10 cos थीटा और u1 इक्वल है और u1 ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0। बॉडी सीधा ऊपर जाती है और नीचे आ जाती, तो वो बोट में गिरती वापस। मैं अगर आपसे नहीं ऐसे बोलूं सर, नो सर। नो सर। से u1 है और मैंने बॉडी को ऐसे थ्रो किया, इन 10 cos थीटा इज u1, तो ये बॉडी बोट में वापस गिरेगी या नहीं? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इसकी 0 है, ये वापस बोट में गिरेगी या नहीं गिरेगी? नहीं गिरेगी। नो सर। बिकॉज बोट आगे चली जाएगी, बॉडी सीधा ऊपर जाएगी और सीधा नीचे आएगी, पर उतने टाइम में बोट तो आगे चली जाएगी। सो आप इस फॉर्म में भी फॉर्मूलाज को याद रखोगे। मैं इसको फर्दर मॉडिफाई करूंगा, जी की जगह भी मैं एक्सेलरेशन लगाने वाला हूँ बाद में, बट अभी ये फॉर्मूलाज याद रखो। सो नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके आगे।
आज कोई असाइनमेंट सेंड नहीं करूंगा, बट ये सारी डेरिवेशंस एक बार रिवाइज कर लेना, एंड उसके बाद कल असाइनमेंट सेंड करूंगा फिर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के पहले एक बार न्यूमेरिकल्स करवा के सर PDF सेंड थैंक यू सर कर दूंगा PDF।